اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن انسانی تاریخ کا ایک دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں انسانوں کے گلے میں ڈالی گئی رسی کا دوسرا سرا بھی انسان کے ہاتھ میں تھا۔ انسانوں کی منڈیوں میں بولیاں لگائی جاتی اور خریدار بھی انسان تھے۔ منڈیوں میں بیچے جانے والے یہ لوگ، ان کا کوئی اپنا نام نہ تھا، ان کو صرف غلام کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ناظرین، میں ساجد بھٹی اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں انسانی غلامی پر مبنی انتہائی مفید اور معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انسانی غلامی کا آغاز کب ہوا، کس دور میں کن تہذیبوں اور کن قومیتوں نے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، غلاموں کو کیا حقوق حاصل تھے، کس طرح دنیا بھر میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی، مختلف ادوار اور مختلف تہذیبوں میں غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، اسلام میں غلاموں کے حقوق اور غلاموں اور لونڈی کا تصور کیا ہے، دنیا بھر میں غلامی کا خاتمہ کب ہوا، اور کیا آج بھی دنیا میں کہیں انسانی غلامی موجود ہے اور دنیا میں غلام پائے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اختتام تک دیکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، انسانی غلامی کی تاریخ انتہائی پرانی ہے۔ ابتدائی زمانے میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور اس کی ذاتی ضروریات انتہائی محدود تھیں۔ پھر انسان نے گروہوں میں رہنا شروع کیا۔ آج سے تقریباً 10,000 سال قبل انسان نے اجتماعی زندگی اختیار کی۔ اجتماعی زندگی کے اختیار کرتے ہی انسان نے زراعت اور کاشتکاری کا آغاز کیا۔ زراعت کے آغاز کے اس زمانے کو نیولتھک انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب انسان گروہوں میں رہنے لگے تو اناج اور خوراک کی ضرورتیں بڑھنے لگیں۔ کاشتکاری کے لیے زیادہ افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ جس قدر زیادہ ہاتھ، اسی قدر زیادہ اناج، اسی قدر زیادہ رقبہ کی ملکیت یقینی تھی۔ تب انسان نے مشقت کی خاطر طاقت کے بل بوتے پر کمزور انسانوں کو اپنی ملکیت میں لینا شروع کیا، جس سے انسانی غلامی نے جنم لیا۔ انسانی غلامی کے اس نظام نے ایسی جڑیں پکڑیں کہ ہزاروں سال تک بڑی بڑی تہذیبیں اسی کے بل بوتے پر پروان چڑھتی رہیں۔ رفتہ رفتہ غلامی کے اس نظام نے باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ حاصل کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ غلام آتے کہاں سے تھے؟ تو ناظرین، غلام 3 طریقوں سے وجود میں آتے تھے۔ ایک یہ کہ طاقتور گروہ کمزور گروہوں پر حملہ کرتے، یعنی جنگ ہوتی، اور مفتوح قبیلہ کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کو سزا کے طور پر غلام بنا لیا جاتا۔ اور تیسرا ذریعہ انسانی منڈی تھی۔ غربت کے مارے والدین اپنے بچوں کو ان انسانی منڈیوں میں لا کر فروخت کر دیتے اور اس طرح وہ نسل در نسل غلام بن جاتے۔ کسی آقا کی ملکیت میں موجود غلام، اس کی وراثت تصور ہوتا۔ آقا کے مرنے کے بعد وہ غلام آقا کی اولاد کے حصے میں آ جاتا اور اس طرح وہ غلام ابن غلام بن جاتے۔ انسانی غلامی کی دستیاب تاریخ کے مطابق آج سے 5,000 سال قبل بیبیلون کے زمانے میں باضابطہ غلاموں کا ذکر ملتا ہے۔ اس زمانے میں خوراک کے اصول کے لیے انسان از خود بھی غلام بن جایا کرتے تھے۔ انسانی غلامی کی تاریخ میں سب سے مشہور اور بدنام زمانہ تاریخ یونان کی ہے۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں یونان انسانی غلامی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ انسانوں سے جبری مشقت لی جاتی۔ یونان کے اسپارٹا سسٹم کے تحت طویل جنگوں کے سلسلے کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ رومن تہذیب میں غلاموں کے ساتھ
इंतहाई जालिमाना सलूक किया जाता। गुलामों को कई दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता। इन गुलामों को एक बड़े आते में खुला छोड़ दिया जाता। कई दिनों के भूखे दरिंदों यानी शेर, चीता और रीछ वगैरह के साथ लड़ाई के लिए छोड़ दिया जाता और उस गुलाम की चीर फाड़ के मनाजर से लुत्फ अंदोज हुआ जाता। इस तमाशे को देखने के लिए मखसूस स्टेडियम बनाए जाते जिनमें उमरा के ख़ानदान के लोग बैठकर इंसानी कत्लेआम का तमाशा देखते और जश्न मनाते थे। एक और सूरत यह भी थी जिसमें कभी एक इंसान के मुकाबले में एक इंसान और कभी गिरोह के मुकाबले में गिरोह हथियारों से मुसल्ला करके मुकाबले में उतारे जाते। इंसानों को लहूलुहान होते देखकर तालियां बजाई जाती और जश्न मनाया जाता। इन जंगजू अफराद को ग्लैडिएटर्स कहा जाता था। लौंडियों को उनकी उम्र, नस्वानियत और मजबूत जिस्म के लिहाज से पहले हाकमीन और बाद में लश्करियों में तकसीम कर दिया जाता। उनसे पैदा होने वाली औलाद भी गुलाम ही तसव्वुर की जाती थी। नाजरीन, 7वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में ज़हूर इस्लाम के बाद ग़ुलामी के असूल और कवानीन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाई गईं। नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शरीयत में आकाओं के लिए कवानीन बनाए। इस्लामी तालीमात में यह पसंद किया गया कि ग़ुलामों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद किया जाए। इस्लामी कवानीन में अक्सर ख़ताओं पर कफ़ारा की सूरत में ग़ुलामों को आज़ाद करने के अहकामात फरमाए गए। कसम तोड़ने, रोज़ा तोड़ने और दीगर ख़ताओं पर ग़ुलामों को आज़ाद करने का कफ़ारा अदा किया जाता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बुलाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक गिनते। आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि नबी मुकर्रम जितने कदम चलकर मेरे घर तशरीफ़ लाते हैं, मैं हर कदम के बदले एक ग़ुलाम को रिहा करता हूँ। और यूँ सहाबा कराम में ग़ुलामों की आज़ादी के हवाले से मुकाबले का आगाज़ हुआ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका से औलाद वाली लोंडी को फ़रोख्त करने पर पाबंदी लगा दी। ऐसी लोंडी वरासत में मुंतकिल नहीं हो सकती और आका की वफ़ात के बाद वो खुद ब खुद आज़ाद हो जाती। हुक्म जारी हुआ कि जो ग़ुलाम अपनी कीमत आका को अदा कर दे वो आज़ाद हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बैतुल माल से अदायगियाँ करके ग़ुलामों को आज़ाद कर दिया जाता था। इस्लाम में तमाम इंसान बराबर हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या कोई और ग़ुलाम तमाम सहाबा में बराबर मुकाम रखते थे। इस्लाम में तो ग़ुलामों को इतनी तरक्की दी गई कि वो हुक्मरान भी बन गए। सन 1209 ईस्वी से सन 1290 तक हिंदुस्तान में ख़ानदान ग़ुलामा ने हुक्मरानी की, जबकि 1250 से लेकर 1517 तक मिस्र में ग़ुलामों ने हुक्मरानी की, जिनको ममलूक कहा जाता था और उनकी सल्तनत को ममलूक सल्तनत। दुनिया की तारीख़ में इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब या तहज़ीब में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कभी ग़ुलामों को हुक्मरानी का हक़ दिया गया हो। उसके बाद 15वीं सदी ईस्वी, जिसे ग़ुलामी का वस्ती दौर कहा जाता है, ये एक तबाहकुन चैप्टर का आगाज़ करता है। ग़ुलामों को जंगों के लिए ख़रीदा जाने लगा। जितने ज़्यादा ग़ुलाम उतने ताकतवर और बड़ी फ़ौज और उतनी ही फतूहात। इसी ज़माने में कपास की काश्त और तंबाकू की पैदावार का आगाज़ हुआ और इसके लिए भी बड़ी तादाद में ग़ुलाम ख़रीदे गए। मिस्र और अफ्रीका उस ज़माने में ग़ुलामों के सबसे बड़े सप्लायर थे। मिस्र में ममलूक हुकूमत तकरीबन 300 साल तक कायम रही और यूँ ग़ुलामों ने मिस्र पर 300 साल तक हुक्मरानी की। 17वीं सदी ईस्वी में पुर्तगाली ग़ुलामों की तजारत का आगाज़ हुआ। ग़ुलामों की तजारत वसअत इख्तियार करने लगी और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ग़ुलामों को फ़रोख्त किया जाने लगा। अफ्रीका से ग़ुलामों को बर्तनों और पिंजरों में कैद करके बहरी जहाज़ों के ज़रिए पुर्तगाल और स्पेन में फ़रोख्त किया जाने लगा।
इस सफ़र के दौरान हर 6 में से एक गुलाम रास्ते में ही जाँ बहक हो जाता। यहाँ पर गुलामों की बहुत बड़ी बड़ी मंडियाँ मौजूद थीं, जहाँ से गुलाम पूरे यूरोप को सप्लाई किए जाते थे। अब गुलामों से काश्तकारी के साथ साथ फैक्ट्रियों में भी काम लिया जाने लगा। 18वीं सदी तक पूरी दुनिया में गुलामों को ले जाने वाले जहाज़ बरतानिया के थे। मगरबी अफ्रीका के गुलामों की बहुत बड़ी डिमांड अमेरिका में थी। अमेरिका में असलहा, शराब, काटन और गुलामों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। इसी ज़माने में अमेरिका में आए हुए गुलामों की अगली नस्लों को आज भी अमेरिका में काले कहा जाता है। 18वीं सदी ईस्वी में ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठने लगी और मुख्तलिफ ममालिक ने ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए कवानीन तश्कील दिए। 1829 में मैक्सिको, 1830 में स्पेन, 1848 में बरतानिया और डेनमार्क, जबकि 1865 में अमेरिका में इंसानी ग़ुलामी के ख़ात्मे का ऐलान हुआ। मोरितानिया वो आखिरी मुल्क था जिसने सन 1981 में इंसानी ग़ुलामी के ख़ात्मे का ऐलान किया। नाज़रीन, बज़ाहिर इंसानी ग़ुलामी का दुनिया में ख़ात्मा हो चुका है, मगर आज भी इंसानी ग़ुलामी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, जिसमें जबरी मुशक्क़त, जिनसी मकासद के लिए इंसानी स्मगलिंग सबसे नुमायाँ हैं। दूसरी तरफ आज भी बड़ी रियासतें और बाज़ मुल्कों में ताकतवर तबकात इंसानों और ममालिक को अपनी ग़ुलामी में रखने के लिए सरगर्म अमल हैं। पूरी की पूरी ममलकतें बाद बड़े मुल्कों की मुआशी और सियासी ग़ुलाम हैं। आज भी इंसान फ़िक्री और नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के ग़ुलाम हैं। जैसे मशरक़ी ममालिक के लोग सोच और अमल में मगरबी सकाफ़त के ग़ुलाम दिखाई देते हैं, इसी तरह तीसरी दुनिया के ममालिक में तमाम इंसान जागीरदारों, सरमायादारों और सियासी जमातों के ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं और अपने बुनियादी हकूक़ से आज भी नावाकिफ़ और महरूम हैं। महसूस यही होता है कि यह फ़िक्री और ज़हनी ग़ुलामी शायद कभी ख़त्म ना हो सके, क्योंकि जब तक दूसरों को ग़ुलाम बनाने का अमल जारी रहेगा, ज़हनी ग़ुलाम भी दस्तयाब रहेंगे। पूरी इंसानी तारीख़ का मुतालिया किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसानी ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए जिस कदर अहकामात और इक़दामात इस्लाम में उठाए गए, किसी और मज़हब, गुरोह या सकाफ़त में नहीं पाए जाते। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।